How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study forests. Ready, steady, start. Given below is a list of materials found in most homes. Write down their sources. How many of them come directly or indirectly from forest? Okay, serial number, item, source, serial number, item, source. Paper, ply, firewood, matchstick, rubber, gum, कोई डोरमेट, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, क्लोथ्स. ये आप खुद से करेंगे. कॉन्सेप्ट्स टू नो: डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फॉरेस्ट, यूजेस ऑफ अ फॉरेस्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिफॉरेस्टेशन, कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट. नाउ अ फॉरेस्ट derived from a Latin word forest meaning out of doors. Forest is a large area of land thickly with different kind of trees, shrubs, herbs, grasses, creepers and climbers. It is one of the most important natural source of the earth and a home to a variety of animals and plant species. Forest cover approximately 1/3 of the earth's total land surface. Approximately 30% of the world total area is covered with forest. In India, forest occupy 21% of the total geographical area. Okay, देखिए फॉरेस्ट जो कि एक लैटिन वर्ड फॉरेस्ट से आया जिसका मतलब होता है बाहर, मतलब कि आउटडोर्स. ओके, फॉरेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटीज मिल सकती हैं, प्लांट्स की, हर्ब्स की, शर्ब्स की, ओके, और एनिमल्स की भी स्पीसीज बहुत सारी मिल सकती हैं वहाँ पे. ओके, फॉरेस्ट जो है वो आपके अर्थ का टोटल लैंड सरफेस जो है उसमें 1/3 पार्ट जो है वो कवर करता है. इंडिया का तो जो प्रॉपर वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से इंडिया जो है वो 21% कवर करता है फॉरेस्ट में. ओके, नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फॉरेस्ट. The forest land is uneven and covered with many trees like sal, alma, teak, shisham, simal, kanchnar, kher, neem and bamboo. In addition to trees, shrubs, herbs, grasses, climbers and creepers are also present. All these types of plants are found in forest, but the variety of plants may depend on the climate of the region. At some places, the trees cover is so thick that sunlight is not able to penetrate through the leaves and the forest floor is quite dark. Okay, देखिए जो फॉरेस्ट लैंड होती है वो अनइवन होती है और कवर्ड होती है बहुत सारे ट्रीज से, जैसे कि सैल, एल्मा, टीक, शीशम. ओके, ये सारे ट्रीज से कवर्ड होती है. कुछ फॉरेस्ट आपके ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा थिकली डेंस होते हैं और उनकी डेंसिटी की वजह से सनलाइट जो है उन की डेंसिटी की वजह से पास नहीं कर पाती है और लैंड तक नहीं पहुंच पाती है. ओके, तो इतने ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड वो ट्रीज फॉरेस्ट होते हैं. ओके, नाउ लेट्स continue. Trees of varying height and shapes are found. In some parts of the forest, the trees are so close and have widespread branches that the sunlight cannot reach the ground. Seeing from the ground, it looks like the roof of branches and leaves, and this roof-like structure is called canopy. The trees in the layer are as high as 100 feet. Okay, देखिए क्योंकि उनकी हाइट्स और जो शेप्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं. तो जो डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट होते हैं जो कि बिल्कुल ही घने फॉरेस्ट होते हैं और जहाँ तक ग्राउंड लेवल तक सनलाइट नहीं जा पाती है, तो वहाँ का जो ग्राउंड है वहाँ पे अगर आप खड़े होगे और अपर साइड देखोगे तो आपको रूफ पे क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ लीव्स दिखाई देंगी. तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें कैनोपी कहा जाता है. ओके, और यहाँ पे जो लेयर होती है ट्रीज की उनकी हाइट होती है कम से कम 100 फीट की. ओके, नाउ animals like monkeys, eagles, toucans and sloths are found here. Most canopy trees have smooth oval leaves and pointed tips. These tips are called drip tips as they let rainwater run down and keep the leaves dry. Okay, देखिए animals जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो monkeys हैं, eagles, toucans, sloths. Okay, और ये जो canopy trees हैं ये काफ़ी ज़्यादा smooth होते हैं, इनके leaves जो होते हैं वो oval होते हैं. oval होने की वजह से rain drops जो होती हैं इनके थ्रू नीचे तक जाती हैं. ओके, पॉइंटेड टिप से जाती हैं. ओके, नाउ इन टिप्स को हम ड्रिप टिप्स कहते हैं जो कि अलाउ करते हैं रेन वाटर को नीचे जाने के लिए. द पार्ट ऑफ द ट्री हैविंग ब्रांचेस, लीव्स एटसेट्रा अबव द ट्रंक इज कॉल्ड crown. The crown of a tree receives maximum light and form horizontal layers in the forest. Different trees have crowns of different shapes and sizes. The crowns of shorter trees from different layers below the canopy. Thus, one can see different horizontal layers of the plant. The understory layer lies between the canopy and the forest floor. This layer is made of
herbs, shrubs and tall grasses, and it is home to a number of birds, snakes, lizards, jaguars and leopards. It receives very little sunshine, only 5% of the sunlight, and it is very humid. So leaves of these plants are large enough to trap sufficient sunlight. Okay, देखिए ये जो पार्ट होता है ट्रीज के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि ब्रांचेस हो गए, लीव्स हो गए, ये सब ट्रंक के अबव होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है. ओके, ये जो क्राउन होते हैं ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट जो होती है यहाँ पे आती है. ये हॉरिजॉन्टल लेयर होता है फॉरेस्ट की, और डिफरेंट ट्रीज जो होते हैं उनके क्राउन्स डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के होते हैं. ये जो क्राउन्स होते हैं ये ट्रीज से शॉर्टर होते हैं, डिफरेंट लेयर्स पे पाए जाते हैं कैनोपी के. ओके, नाउ यहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे, स्पीसीज मिलेगी, जैसे कि बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, जैगुआर्स, लियोपार्ड्स. ओके, तो यहाँ पे जो लेयर्स होती है हर्ब्स की, शब्स की, टॉल ग्रासेस की, ये होम होता है इन सारे एनिमल्स का कहीं ना कहीं. ओके, और यहाँ पे बहुत कम सनशाइन आती है, मतलब कि 5% ही आती है, बहुत ह्यूमिड होता है. ये लीव्स जो होती हैं इन प्लांट्स की इतनी लार्ज होती हैं कि ये इनको सफिशिएंट सनलाइट मिल जाती है. ओके, नाउ द फॉरेस्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर इज ऑफन डार्क कलर्ड and is covered with moist, warm, dead and decaying matters of leaves, twigs, fruits and seeds. It is spongy and rich in nutrients. All this decay of the forest floor and form humus which provide nutrients in the growing plants. Ferns, grasses, mushrooms and seedlings grow in the forest floor and it is home of millipedes, beetles. It provides insects, ants, beetles, earthworms, bacteria and fungi. Besides, a number of large animals like rhinoceros, tigers, lions and elephants also live here. Many animals like bison, boar, bear and jackals live in the deeper areas of forest. Okay, देखिए इन फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, वो डार्क कलर में ही होता है. ओके, और ये कवर्ड होता है मॉइस्ट, वार्म, डेड और डिकेइंग मैटर से, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स, ये सारी चीज़ें डिकेइंग होती है, डेड एंड डिकेइंग चीज़ें होती हैं जो इसके फ्लोर पर फैली हुई होती हैं. ओके, ये स्पॉन्जी होती हैं, मिनरल्स में रिच होती हैं. ये जो डेड डिकेइंग मैटर होता है फॉरेस्ट में, ये क्या फॉर्म करता है, ह्यूमस फॉर्म करता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रोइंग प्लांट्स को. ओके, अब फर्न्स, ग्रासेस, मशरूम, सीडलिंग्स ये सारे फॉरेस्ट फ्लोर पर उगते हैं और ये होम होते हैं मिलिपेड्स और बीटल्स के. इंसेक्ट्स, एंड्स, बीटल्स, अर्थवर्म्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. और इसके अलावा काफ़ी सारे एनिमल्स जैसे कि राइनोसॉर्स, टाइगर्स, लियोन्स, एलिफेंट्स और यहाँ पे रहते हैं. उसके अलावा डीप साइड में इस फॉरेस्ट में डीपली जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है बीसॉन, बोर, बियर, जैकल्स. ओके, नाउ यूजेस ऑफ forest. Forests are an important natural renewable resource capable of regenerating themselves. Forests are one of the most important natural resources and are useful in many different ways. They provide us many useful things and play a very important role in maintaining the environmental balance. Okay, देखिए जो फॉरेस्ट हैं ये नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो कि खुद को रिन्यू कर सकते हैं, ये इतने कैपेबल होते हैं. ओके, नाउ अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है डिफरेंट वेज में. ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है हमारी डेली नीड की. ओके, द मेन यूजेस ऑफ फॉरेस्ट आर लिस्टेड बिलो. नीचे इसके मेन यूजेस बताए गए हैं. सोर्सेज ऑफ food. All living organisms depend on plants directly or indirectly for food. Prevents soil erosion. The removal of top fertile soil from a region by wind, rain or running water is called soil erosion. Trees hold the soil together and help in prevention of erosion of the top fertile layer of the soil. Okay, देखिए तो पहली चीज़ है सोर्सेज ऑफ फूड. फूड हमें मिलता है, ठीक है, फॉरेस्ट से, प्लांट से. हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए. ओके, अब जो फर्टाइल टॉप लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है फ्लो ऑफ वाटर या विंड से. ओके, अब जो ट्रीज होते हैं वो उस लेयर को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए ट्रीज का होना ज़रूरी है. ओके, नाउ प्योरीफाई एयर.
Plant release oxygen during the process of photosynthesis and thereby purify air. The oxygen released is used by both plants and animals for respiration. Balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained by plants. This is why forests are called green lungs. Okay, देखिए प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसके थ्रू जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो प्योरीफाई होती है. ओके, ऑक्सीजन रिलीज जो होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के थ्रू द्वारा ही कंज्यूम की जाती है. ओके, ये रेस्पिरेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं और बैलेंस बना के रखते हैं. कहीं ना कहीं प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं. ओके, इसीलिए इन्हें फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं. सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर, firewood, fiber, paper, honey, gum, resins, spices, perfumes, dyes, medicines and fodder for animals. Okay, देखिए फॉरेस्ट जो है वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टिम्बर है, फाइबर है, फायरवुड है, हनी, गम, रेजिन, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं. ओके, रेगुलेट क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल. Forests regulate the climate by maintaining the level of rainfall necessary for their own existence. Forests recycle water in the atmosphere through transpiration and formation of clouds. Later, the water reaches the forest in the form of rainfall. This keeps the air cool, leading to cloud formation and rainfall. This helps to maintain the water cycle. Okay, देखिए फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करके रखते हैं रेनफॉल, जो कि नेसेसरी है बहुत ज़्यादा उनके खुद के एग्जिस्टेंस के लिए. ओके, फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट रिसाइकल करता है वाटर को एटमॉस्फेयर में ट्रांसपिरेशन के थ्रू और फॉर्मेशन क्लाउड्स की करता है. ओके, अब उसके बाद वाटर जो है वो फॉरेस्ट में जाता है कैसे, रेनफॉल के थ्रू आता है. ओके, जिसकी वजह से एयर जो है, जो एटमॉस्फेयर है वो कूल रहता है और ये क्या करता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है और रेनफॉल करता है. ओके, और इसी वजह से मेंटेन बना रहता है आपका वाटर साइकिल भी. ओके, प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन. Forests are a natural habitat for wildlife. Since the animals are free in forest, there are chances of interbreeding, and this interbreeding results in evaluation of new life. Also, they help in preserving the wildlife which is on the verge of extinction. A wide variety of trees, herbs, shrubs, creepers and climbers are also फाउंड. देखिए फॉरेस्ट जो है ये एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए. ओके, एनिमल्स जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं वहीं पे फ्रीली रहते हैं. ओके, तो यहाँ पे इंटरब्रीडिंग होती है. ओके, और ये प्रिजर्व करके रखते हैं वाइल्ड लाइफ को, स्पेशली उनको जो एक्सटिंक्ट मतलब कि ख़त्म होते जा रहे हैं तो उनको भी प्रिजर्व करके रखते हैं. तो बहुत सारी वेराइटी यहाँ पे पाई जाती है ट्रीज़ की, हर्ब्स की, शब्स की. ओके, नाउ मैनी ट्राइब्स लिव्स इन forest. Tribal are the people that live in forest and depend on forest for their daily needs. Forest not only support plant and animal but also give shelter for tribals. Okay, देखिए फॉरेस्ट जो है वो उसमें काफ़ी सारे ट्राइबल्स भी रहते हैं और ये फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए नहीं होते, लेकिन वो शेल्टर देते हैं ट्राइब्स को भी. ओके, ट्राइबल पीपल जो है वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं और वहीं पे उनकी डेली नीड्स की चीज़ें मिलती हैं. ओके, कंट्रोल फ्लड्स. Water table is maintained by forest as they replenish groundwater through seepage of rainwater. The rainwater falls on the canopy and understored before reaching the soil. This reduces the speed of falling water. The water now drips slowly down the leaves into the forest floor. Thus, it does not get collected and able to seep through the soil, replenish groundwater. Okay, देखिए फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं कैसे, क्योंकि वाटर टेबल जो है ये मेंटेन किया जाता है ग्राउंड वाटर के थ्रू. देखिए जब भी रेनफॉल होती है, क्योंकि इनके लीव्स के थ्रू वाटर जाता है वो धीरे धीरे स्लोली जाता है. ओके, और जब ये सॉइल पर गिरता है तो वो धीरे धीरे इसे ऑब्जर्व करते हैं तो ये ग्राउंड वाटर में रिप्लेनिश हो जाता है. ओके, नाउ प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. Carbon dioxide CO2, sulfur dioxide SO2 and carbon monoxide CO are released by human activity in atmosphere. As you know, carbon dioxide play a major role in global warming. Increase in the temperature of the earth takes place due to increase in CO2 content in the atmosphere. Trees use carbon dioxide during the process of photosynthesis, keeping its quantity under the control. Okay, देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO. ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO. ठीक है, ये
ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में। ओके, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है अर्थ पे तो जो CO2 है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। ओके, CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे और वो यूज़ लिमिटेड होता है, कंट्रोल्ड होता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। मेंटेन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज और convert dead remains of plants and animals into humus. Humus is rich in nutrients needed by plants to grow. Thus, decomposers help to maintain the supply of nutrients to the diverse plants present in the forest. Animal dung also provides nutrients. Okay, देखिए अब डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स डिकम्पोज होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये जब डिकम्पोजर्स होते हैं इनके ये ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं और जो ह्यूमस होता है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और जो कि आपकी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, तो डंग का भी यूज़ किया जाता है एज अ न्यूट्रिएंट सॉइल में। ओके, नाउ serve as a source of tourism and recreation. Some forests have been emerged and developed into recreation parks. A lot of people are attracted to forests for research, hiking, camping and various other outdoor activities. Okay, देखिए कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जिन्हें रिक्रिएशन पार्क्स बनाया गया है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि फॉरेस्ट की तरफ अट्रैक्टेड हैं, किस चीज़ के लिए, हाइकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए या फिर कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, नाउ साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजर। साइड में आपको एक डायग्राम दिखेगा। ओके, तो ये साइकिल है। ओके, तो ये साइकिल कैसे चलती है, प्लांट्स से डिकम्पोजर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, देन प्लांट्स, देन अगेन एनिमल्स। ओके, तो ये साइकिल है, ये चलती रहती है। नाउ सोर्स ऑफ वुड। फॉरेस्ट are a rich source of wood. Wood is used as timber for construction and making furniture, doors, windows, sleepers and in the railways, tracks and various sports goods like bats, rackets, hockey sticks etc. are also made of wood. Okay, देखिए फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है बहुत सारी और वुड का यूज़ डिफरेंट वेज में हम करते हैं, जैसे कि फर्नीचर्स बनाने के लिए, डोर्स, विंडोज, स्लीपर्स, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें भी वुड्स का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा गेम्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों में भी, जैसे कि बैट्स हो गया, रैकेट्स हो गया, इन सब में भी वुड का यूज़ किया जाता है। ओके, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स. Green plants prepare their own food and are called producers. Autotrophs. Heterotrophs consumers, they may be herbivores or carnivores. Thus, consumers and herbivores are either directly or indirectly dependent on plants for food. Okay, देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्लासिफाइड है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स जिसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, कंज्यूमर्स जिन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है और डिकम्पोजर्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो खुद का फूड खुद बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं, मतलब के ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स जो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स या फिर कार्निवोर्स हो गए। ओके, कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ओके, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन आर ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। ओके, देखिए वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स को फीड करते हैं या फिर कई बार उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को थ्रू दूसरे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू खा लिया जाता है। ओके, ये जो सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की, ये लिंक होती है इस प्रोसेस में कि खाते हैं फिर दूसरे के द्वारा खाए जाते हैं, तो ये साइकिल होता है एक तरीके से, जिसे हम बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं। ओके, ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड अ trophic level and energy is transferred from one trophic level to another in the form of food and nutrient. ठीक है, हर लेवल जो होता है फूड चेन का उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं और हर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर की जाती है। ओके, एक लेवल से दूसरे लेवल में। ओके, तो ये फूड या न्यूट्रिएंट्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रांसफर होते हैं वो होता है इसमें। ओके, एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन: ग्रास, जिब्रा, लायन, ग्रास, डियर, टाइगर, प्लांट्स, रैट्स, स्नेक्स, हॉग, प्लांट्स, कैटरपिलर, स्पैरो, हॉक। ओके, ये एग्जांपल है फूड चेन का। तो ग्रास जिब्रा खाता है, जिब्रा को लायन खाते हैं, ग्रास डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है, प्लांट्स को रैट्स खा रहे हैं, रैट्स को स्नेक और स्नेक को हॉक। ओके, प्लांट्स को कैटरपिलर, कैटरपिलर को स्पैरो और स्पैरो को हॉक। तो ये फूड chain है। okay, now many such food chains exist in nature. Every level in food chain can also be a part of another food chain and many food chains are grouped with some common trophic levels, so it is complex web type thing.
All food chains are linked together. Interlinked food chains form a food web. ओके देखिए, इस तरीके के बहुत सारे फूड चेन्स जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हर लेवल पर फूड चेन जो है वो दूसरे फूड की चेन होती है, मतलब कि एक फूड से दूसरे फूड को खाया जाता है। ओके, तो ये फूड चेन होती है, ग्रुप होती है, ट्रॉफिक लेवल्स पर होती है, तो ये कॉम्प्लेक्स वेब थिंग भी होती है, तो इन्हें ये इंटरलिंक्ड होती है, मतलब फूड चेन जो है एक फॉर्म होता है फूड वेब का। ओके, नाउ the sun is the ultimate source of energy on the earth. Plants get light energy from the sun and change it into chemical energy during photosynthesis. When animals eat the plants, this energy gets transferred to the animals, and when the animal is eaten up by the other animal, this energy gets transferred. When the animals die, vulture, eagle, jackals and crows feed on their dead bodies. These animals that feed on the dead bodies of other animals are called scavengers. ओके ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि जो डेड एनिमल्स पर फीड करते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। ओके, ये जो एनिमल्स होते हैं इन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। नाउ सन जो है ये एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे। ओके, प्लांट्स को जब लाइट मिलती है तो इस सोर्स के थ्रू इसको ये यूज करते हैं और इस सोर्स को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। ओके, तो जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उनमें वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, उन एनिमल्स में प्लांट्स की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है और फिर उन एनिमल्स को जो एनिमल्स खाते हैं उन एनिमल्स के थ्रू उनमें उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, नाउ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी आर also found in forests. They feed on the dead remains and plants and animals. These organisms are called decomposers. They obtain their food from the dead remain and convert them into humus, which is rich in nutrients. The humus is added to the soil and the producers again absorb their nutrients from the humus of the soil, and the whole cycle is repeated again and again. Decomposers also ensure that the nutrients are released back into the soil. These nutrients are again utilized by the plants. In this way the cycle continues and the nutrients are recycled. Okay, देखिए nutrients जो है वो recycle होते हैं किस तरीके से, देखिए बैक्टीरिया और फंगी जो कि फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। ओके, वो डेड और डिकेइंग रिमेन्स जो होते हैं उन पर वो फीड करते हैं। ओके, नाउ ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ओके, इन्हें फूड मिलता है डेड रिमेन से। ओके, फिर वो उसे कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में जिसमें रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। तो जो ह्यूमस होता है वो सॉइल में एडेड होता है और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं सॉइल के द्वारा और ये जो रिपीटेशन है ये चलती रहती है बार बार। ओके, और जब ये रिपीटेशन चलती है इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू करता है। ओके, नाउ डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर द फॉलोइंग: कार्बन डाइऑक्साइड, पॉलिनेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं किस चीज़ के लिए? पहली चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज़ पॉलिनेशन। हमने पॉलिनेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी पता है हमें कैसे ये लोग यूज़ करते हैं प्लांट्स, और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, इनके लिए भी ये एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। अब एनिमल्स प्लांट्स पे कैसे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और फॉर द फॉलोइंग: फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर। तीन चीजों के लिए, फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और द फेलिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट में डिसअपियर इन इफ डिफॉरेस्टेशन कॉन्टिन्यूज। ओके, देखिए जब फॉरेस्ट में जो ट्रीज है उन्हें डिस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर काट के गिराया जाता है, इसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगर फॉरेस्ट को रेगुलरली क्लीन कर दिया जाएगा तो जो फॉरेस्ट नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा तो फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाएंगे। ओके, नाउ कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं? वाटर एंड लैंड एंड एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज result in the destruction of forest and the death of wild animals. Forest fibers and heavy floods destroy forests and kill wildlife.
Urbanization, building of cities and establishment of estates leads to the death of wildlife. Forests are destroyed for firewood, charcoal, mineral ores, timber, bamboo, fodder and raw materials for paper, rubber and other forest products like gum, resin, medical plants, spices, oils, etc. Forests are destroyed for cultivation of crops. Okay, देखिए क्या क्या डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज है. पहला है आपका वाटर, लैंड, एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज के थ्रू जो होता है. ओके, दूसरी चीज है फॉरेस्ट में फायर लग जाती है या फिर हैवी फ्लड्स हो जाते हैं जिसके थ्रू जो वाइल्ड लाइफ है उनकी जान जाती है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट होते हैं. ओके, उसके अलावा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होना, ठीक है, शहर डेवलप होना, ये भी फॉरेस्ट को कट करके ही किया जाता है. ओके, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है फायरवुड कलेक्ट करने के लिए, चारकोल, मिनरल ओर्स, टिम्बर, बैम्बू, ये सारी चीज़ें जो कलेक्ट की जाती हैं उससे फॉरेस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं. फॉरेस्ट को क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए भी डिस्ट्रॉय किया जाता है. ओके, नाउ डिसअपेयरेंस ऑफ फॉरेस्ट कैन लीड इनटू द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज. अगर फॉरेस्ट डिसअपेयर हो जाएंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे. देखिए, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज. दिस विल कॉज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू राइज, ग्लोबल वार्मिंग. देखिए, जो आपके अर्थ में टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी. ओके, डिसअपेयरेंस ऑफ फॉरेस्ट कैन लीड into following consequences. Amount of carbon dioxide in the air will increase. This will cause the temperature of the earth to rise, global warming. Formation of deserts and occurrence of floods, increased soil erosion and hence decreased fertility. Rainfall will be affected. Animals will be devoid of food and shelter. We will not get valuable products like timber, fuel wood and medicinal plants. Okay, देखिए क्या क्या डिफरेंट अगर फॉरेस्ट डिसअपेयर हो जाएंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ेंगे. ओके, सबसे पहला है आपका कि ऑक्सीजन नहीं रहेगी, क्योंकि प्लांट्स नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में रहेगी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो राइज ही होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी. ओके, देन जो डेजर्ट्स हैं वो बनेंगे, फ्लड्स आएंगे. ओके, सॉइल इरोजन होगा. ओके, फर्टिलिटी कम हो जाएगी सॉइल की, रेनफॉल अफेक्ट होगी इससे. ठीक है, एनिमल्स को फूड और शेल्टर नहीं मिलेगा, हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. ओके, एनवायरमेंटल लिटरेसी. डिफॉरेस्टेशन कैन हैव डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑन नियर बाय कम्युनिटीज विद फ्यूअर ट्रीज टू ऑब्जर्व पॉल्यूटेंट्स. एयर क्वालिटी में deteriorated leading to respiratory problems and other illness. Additionally, deforestation can disrupt the natural habitat of decrease carrying animals, potentially increasing the risk of zoonotic diseases transmission to humans. देखिए, डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी वजह से जो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट हो सकता है काफ़ी सारा. ठीक है, उसके अलावा आपके ट्रीज कम हो जाएंगे तो जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जाएगी, इलनेस बढ़ेगी. ओके, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एनिमल्स को शेल्टर नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा. ओके, और जूनोटिक डिजीजेज होंगी जो कि ह्यूमंस में ट्रांसमिशन हो सकती हैं. ओके, conservation of forest. Significant effects must be made to conserve forest. Some ways to prevent deforestation are as follows. देखिए, बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए. डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए. सिल्वीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर प्रोग्राम्स दैट हैज बीन स्टार्टेड टू रिप्लेनिश फॉरेस्ट. It has helped in preserving the environment by bringing more and more areas under forest. It produces large quantities of raw material for various industries. Silviculture, okay, ये एक मेजर प्रोग्राम है जिसके थ्रू फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा रहा है. ओके, काफ़ी सारे फॉरेस्ट को अंडर प्रिजर्वेशन लिया गया है और काफ़ी सारी क्वांटिटी है रॉ मटेरियल्स की और वेरियस इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोड्यूस की गई है लार्ज क्वांटिटीज़ में. ओके, नाउ एफॉरेस्ट्रेशन. लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्ट्रेशन. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सिचुएशन लाइक सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड रिडक्शन इन रेनफॉल, प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स, प्लांट कल्टिवेशन एंड वाइज यूज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड शुड बी डन. इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज मस्ट बी स्टॉप्ड. एनकरेज कंजर्वेशन प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव,
conserve, prevent or overgrazing by cattle. Local people should be involved in the afforestation efforts. Biodiversity, that is various species of plants and animals, need to be preserved in botanical gardens, national parks, zoological parks and wildlife sanctuaries. ओके देखिए एफोरेस्टेशन क्या होता है कि लार्ज स्केल में ट्रीज को ग्रो करना. ओके इसे हम एफोरेस्टेशन कहते हैं. एफोरेस्टेशन की हेल्प से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है और रेनफॉल रिडक्शन को भी रोका जा सकता है. उसके अलावा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फायर से. ओके उसके अलावा कल्टीवेशन जो है या फिर एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको स्टॉप करना चाहिए. ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए करके ये सारी चीज़ें की जाती है, तो इस चीज़ को थोड़ा रोकना चाहिए. ठीक है, ये प्लान करके करना चाहिए. इलीगल कटिंग नहीं करनी चाहिए. ओके ये रोकनी चाहिए. वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए. ओके ओवर ग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए. ठीक है, कैटल्स के थ्रू, और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए एफोरेस्टेशन में. ओके बायोडाइवर्सिटी जैसे कि बहुत सारे खुली हुई हैं आज के टाइम पे, जैसे बोटानिकल गार्डन्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए. ओके नाउ आगे बढ़ते हैं. इंफॉर्मेशन लिटरेसी. द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 1973 इन द विलेज ऑफ मंडल ऑफ द हिमालयाज इन उत्तराखंड. द टर्म चिपको मीन्स टू हग द वुमेन ऑफ द रूरल एरिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द एक्टिविटीज सुंदर लाल बहुगुना वेंट इनटू द फॉरेस्ट एंड फॉर्म्ड अ सर्कल अराउंड द ट्री, प्रिवेंटिंग men from cutting them down. The success of the movement in the hills saved thousands of trees being felled. It also aimed to promote sustainable and community-based forest management. Okay, देखिए चिपको मूवमेंट ये अप्रैल 1973 में शुरू हुआ था मंडल गांव में, हिमालयाज के उत्तराखंड में. ओके तो यहाँ पे जो विमेंस थी उन्होंने ग्रुप बना के ट्रीज को कवर किया था और रोका था दूसरों को ट्रीज को कट करने से या फिर उनको फेल डाउन होने से. ओके तो इस तरीके से वहाँ के ट्रीज को प्रिजर्व किया गया था. ओके नाउ रीड एट अ ग्लेंस. Forests are home to wildlife and wild plants. Forests consist of several layers: canopy, understory and forest floor. Forest floor is rich in nutrients. Forests make the web of life. They release water into the atmosphere and then the water returns the earth as rain to replenish the groundwater. Forests purify the air and prevent pollution of air. Decomposers recycle the substances from which living things are made of so that they can be absorbed again from the soil. Both plants and animals are dependent on each other for their survival. Animals depend upon plants for food, oxygen and shelter. Plants depend upon animals of carbon dioxide, pollination and seed dispersal. Forests regulate the climate by maintaining the level of rainwater. Deforestation causes global warming, soil erosion, floods and landslides. The naturally habitat of the animals is lost due to the deforestation. Forests also provide rubber, wood, timber, paper, fodder, gum, resin, catalea, edible fruits and medicinal plants for industries as well as the local people. Conservation of forest can be done by afforestation, prevention of overgrazing, protection from forest trees, fires and plant cultivation. Key terms to know. Tribal. People that live in forests and depend on forests for their daily needs. Global warming. Rise in surface temperature of the earth. Forest. A large area of land where various plants, animals and more microorganisms exist in their natural homes. Canopy. A roof of cover formed by the branches of tall trees in the upper regions of forest. Crown. The part of the tree above the stem which has branches. Decomposers, microorganisms which convert the dead plants and animals to humus. Trunk, main strong stem of the tree. Food chain, sequence who eats whom. Web chain, web of different food chains with some common trophic levels. Trophic level, each level in a food chain. Decomposers, microorganisms which convert the dead plants and animals to humus. Decomposition, process of breaking down the complex substances into simple elements. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.